Hey everyone, Assalamu alaikum. It's me, your sister. Welcome back to my Graceful Thought YouTube channel. It has been almost many months since I uploaded my last video. I remember I uploaded my last video in December 2024, and now it's almost October, and today is 2nd October, and here I am once again recording myself and sharing what I did in these days, where I have been in all these months. What am I doing? Actually, this is my real raw story. I'm not here to give you a perfect tale, but to share the truth how I become the woman I am today. Calm, glowing, and independent. I was not always like this. In my teenage years, I was less confident. Even few months back, I was so lost. I feel I am one of the most unworthy person in this world. I feel like I'm the doormat of people's life. Means I lost everything. Like I was boss in my life. When I started, remembering my past few months, I only remember that I used to cry a lot, and I have zero confidence. But now, look at me. I'm recording once again, holding my mic, setting my camera, and here once again I am recording. I bloomed, I glow, and I become independent financially, emotionally, and physically. Okay, yeah, life has its way of shaping us, like it has his own ways to shape us, and mine shaped me through pain, loss, and lessons. So today I want to share with you 7 things I learned, lessons that make me stronger, closer to Allah, and more in love with myself and my life. So before wasting any time, I would quickly remind you guys that whenever you feel lost, or whenever you feel unworthy, or whenever you feel less confident, just remember one thing. Everything in this world comes for life. Like Allah gave us life, and Allah is the one who gave us pain. Allah is the one who gave us happiness. Everything has its own reason behind it, and we don't know the exact reason. Maybe we lost someone from our life, maybe we lost something which is very precious to our heart, but for that loss also there is something great behind it. If we believe in such statement, I know this statement is really very big, and people like me who are emotionally very much dependent on others can't quickly adapt this statement. नहीं हो पाएगा जल्दी से ये स्टेटमेंट को समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ पे, बट मैं कर सकती हूँ। मुझ जैसा इमोशनली डिपेंडेंट इंसान, मुझ जैसा लॉस्ट इंसान, मेरे जैसा एक इंसान जिसने अपनी लाइफ के बहुत सारे महीने वैसे वेस्ट कर दिए फॉर ऑल दिस, देन डेफिनेटली यू ऑल्सो कैन. एंड दिस वीडियो इज़ फॉर समवन हु इज़ सो मच लॉस्ट in they lost their confidence, they lost their own identity. Yeah, so here are 7 things I learned from all these months. Like I observed that these 7 things really changed me, and these 7 things make me more independent and more confident, and I'm blooming and growing. Yeah, so the first thing I would say, the first lesson is stop depending on others for confidence. ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा अगर मैं ऐसे बताऊँ तो. आई नो पीपल लाइक मी हु आर वेरी मच डिपेंड ऑन अदर्स, जो बचपन से ही थोड़ा सा डिस्टर्ब लाइफ गुजारे, मतलब बचपन से ही दे हैव देयर ओन इनसिक्योरिटीज़. आई रिमेंबर आई हैव सो मैनी इनसिक्योरिटीज़ बिफोर लर्निंग दिस 7 लेसन्स. कोई मेरी तरफ ऐसे आंख उठा के भी देखता तो मैं समझ जाती थी कि मेरे अंदर कोई खामी है, कोई बुराई है जो वो पॉइंट आउट कर रहा है, और मैं जल्द से अपने आप को ठीक करना शुरू करती थी. दैट्स हाउ आई वॉज डिपेंडेंट ऑन अदर्स.
यू नो द इवन अ लुक फ्रॉम अदर्स मेक मी इनसिक्योर. सो सोचो कितनी ज़्यादा मैं इनसिक्योर थी. सो द फर्स्ट लेसन इज स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर कॉन्फिडेंस. I remember in my teens and even a few months back, I thought confidence comes from people appreciating me, telling me I look good or validating my choices. But when those voices disappeared, I broke down. Slowly, I realized real confidence comes when we accept ourselves the way Allah made us. पहले तो you know we have to understand the fact that Allah make everyone so beautiful. No one is imperfect because Allah cannot make things or people imperfect, right? Allah is the best of best creator. He is the only God who is true in this world. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता अल्लाह ने किसी चीज़ को बनाया और उसमें खामी होगी, उसमें कोई बुराई होगी. अगर आपको लोगों पे डिपेंड नहीं होना है कॉन्फिडेंस के लिए, तो आपको ये बात अपने दामन से बांधनी होगी कि आपका रियल कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपके पास जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे. वॉट एवर यू हैव, योर पास्ट, योर सेल्फ मिस्टेक्स, योर एटीट्यूड और वॉट एवर वी कॉल्ड इट, जो भी हो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. योर स्कार्स, योर पास्ट, योर इम्परफेक्शंस, ऑल ऑफ इट यू हैव टू एक्सेप्ट. वंस आई स्टॉप बेगिंग फॉर अप्रूवल, आई स्टार्टेड टू ग्लो फ्रॉम विद इन. मैंने भी खुद को एक्सेप्ट किया. मैंने भी खुद के पास्ट पर जब नज़र डाली तो मुझे भी अपनी गलतियाँ नज़र आई और मैंने उन गलतियों की सज़ा अपने फ्यूचर को या अपने प्रेजेंट को देना बंद कर दिया. यू नो मोस्ट ऑफ अस आर लॉस्ट इन आवर पास्ट बिकॉज वी कैन नॉट फॉरगिव अवर सेल्फ. वी कैन नॉट फॉरगिव अवर सेल्फ. I mean, we used to forgive others, but we cannot forgive ourselves, and that's where I was also doing. I was not forgiving myself, so I stopped depending on others for confidence. और मैंने खुद को एक्सेप्ट किया और जैसे ही मैंने खुद को एक्सेप्ट किया, मैंने जैसे ही अपने खुद के ओल्ड स्कार्स, पास्ट मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया, तुरंत नहीं बोलूँगी बट ग्रेजुअली आई बिकम मोर कॉन्फिडेंस एंड आई ऑब्जर्व दैट आई वॉज स्टार्ट ग्लूमिंग. The next lesson is life will hit you, but it's not the end. You know, at every small inconvenience, we feel like, oh shit, मेरे साथ ही क्यों, आज तो ख़त्म ही हो गया, अब बस हो चुकी है मेरी, मैं फट रही हूँ अभी गुस्से से या मैं फट रहा हूँ अभी गुस्से से. ये स्टेटमेंट्स इतने कॉमन हो गए हैं कि हम एक छोटी छोटी चीज़ को भी ऐसे समझ लेते कि यहाँ हो गया, बस अब मेरी हो गई, अब मुझसे नहीं हो पाएगा. जैसे आई रिमेंबर आई बुक वन ओला उबर समथिंग फ्रॉम ऐप और वो नहीं आ गया था, रीच नहीं हुआ प्रॉपरली टाइम पे, और वो नहीं रीच होने की वजह से मैं उसको तुरंत बार आई वॉज कॉलिंग दैट पर्सन एंड ही डिडंट अपीयर. और फिर उसने वो राइड ही कैंसिल कर दी और वो राइड कैंसिल हो गई और उसके बाद 40 मिनट्स तक देयर वाज नो कैब, देयर वाज नो ऑटो और इवेंट जो है वो उसको स्टार्ट होने में सिर्फ 15 मिनट्स है. तो मुझे ऐसा लगा कि बस अब हो गया, 40 मिनट्स हो गए, इवेंट को स्टार्ट होने में 15 मिनट्स थे और इवेंट था खुद ही 1 घंटे का, तो अभी 40 मिनट्स के बाद मैं क्या ही जाके इवेंट अटेंड कर पाऊँगी. बट वैसे वो 40 मिनट्स वेस्ट होने के बाद जब मैं वापस आ गई घर में, मैं आई स्टार्टेड शाउटिंग एट अदर्स, वाई इट्स मी, क्यों कैब वाला नहीं आया, ये वो. लेकिन सडनली वन ऑफ माई फ्रेंड send me a link. She recorded everything. I mean, it's available on YouTube. मेरा माइंड उस YouTube के लिंक तक जा ही नहीं रहा था. मतलब ये चीज़ जो है वो लाइव स्ट्रीम भी हो रही है YouTube पे, Instagram पेज पे लाइव स्ट्रीम हो रही है. मैं फिजिकली जाके अगर अटेंड नहीं कर पा रही हूँ तो आई कैन वॉच थ्रू ऑनलाइन, लाइक थ्रू Instagram, थ्रू YouTube. लेकिन मेरा माइंड जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को डील करने के लिए एकदम हार जाने वाले एक स्टेट में आ चुका है. तो इवन एक टैक्सी राइड जो कैंसिल हो गई वो भी मुझे ऐसा लगेगा कि बस अभी मेरी लाइफ इधर स्टॉप हो चुकी है. ऐसे ही हम बड़े डिसीजंस ऐसे ही गलती में ले लेते हैं कि बस ये नहीं तो कुछ नहीं तो ये भी नहीं. ऐसे एक स्टेट में हम जब आ जाते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ विल हिट यू बट इट्स नॉट द एंड. When people I love the most left me, I felt like my whole world collapsed. ऐसा हुआ है मेरे लाइफ में. In my past video, I shared that one of my one of my closest one left me for so and so reasons. Most of us have already, gone through from this situation.
People come, people will go. That's how life, it works. This is how Allah makes the life. So we have to understand that this thing, like, okay, sorry, yeah. So ये समझना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन we cried, we questioned, we even doubt ourselves, but no one I understood. Sometimes Allah remove people because their role in our life is over, and it hurts, I know, but it's not the end, it's the beginning of discovering yourself. हमको ये एक बात समझनी चाहिए. तो ये सेकेंड लाइफ लेसन है विच आई लर्नड इन these many months. The third lesson, I would say, growing alone builds strength. बहुत, this thing is really very underrated thing. अलोन को कभी भी इंसान ने लोनलीनेस से मेजर किया है. अलोन इज अ डिफरेंट वर्ड, आई मीन इट हैड इट्स डिफरेंट मीनिंग, एंड लोनलीनेस इट हैड्स इट्स डिफरेंट मीनिंग. लोनलीनेस का मीनिंग अलग है और अलोन का मीनिंग अलग है. सो आई ग्रो ऑन माई ओन. There was no one holding my hand, no one clapping for me, and no one guiding me every step. And that's when I realized loneliness is not a curse, it's actually a stage Allah gives us to build our backbone. You learn who you are when no one is around. And this thing is really, true. हम खुद ही को तभी समझ पाते हैं तब हम अकेले होते हैं. और अकेलेपन का मीनिंग ये नहीं है कि आप हमेशा एकदम लॉस्ट रहेंगे, आप अकेले हो तो वो आपके लिए कर्स है. इट्स नॉट लाइक दैट. I read many books on loneliness and being alone. So I will share in my next video. Otherwise it will become a very very long video. अगर वो books के बारे में और वो learnings के बारे में और वो philosophies के बारे में और वो psychologies के बारे में मैंने अगर इधर बात किया तो so you have to understand that growing alone builds strength. आप alone हो तो आप खुद ही की strength बन जाओ, तभी जाके आप सारी चीज़ों को ओवर कर पाओगे, मतलब उनसे बाहर निकल पाओगे. The fourth lesson is really very soothing. I mean, अगर आप ये एक बात समझ जाओगे, ये फोर्थ लेसन समझने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया. This December I will turn 29 years old woman, and it took me whole 28 years to understand this fourth lesson. पूरे इतने साल लग चुके हैं मुझे ये एक बात समझने के लिए, जबकि यही बात मुझे बहुत सारे लोग रिमाइंड करवाते थे. माई पेरेंट्स यूज टू रिमाइंड मी दिस, माई सिबलिंग्स यूज टू रिमाइंड मी दिस, माई फ्रेंड्स, माई कलीग्स, माई रिलेटिव्स, एवरीवन यूज टू रिमाइंड मी दिस. लेकिन ये बात मुझे तभी समझ में आई जब मैंने सोचा कि मुझे ये बात समझना चाहिए. ऐसा बहुत बार होता है जो हमको लोग सिखाते रहते हैं, बार बार रिमाइंड करवाते रहते हैं, लेकिन तब जब तक हम उस बात को समझने के लिए खुद ही से एफर्ट ना डालें तब तक हम नहीं समझ पाएंगे. तो ये भी एक ऐसा ही लेसन है, फोर्थ लेसन है, अल्लाह नेवर लीव्स यू. आपको समझना चाहिए ये बात, अल्लाह विल नेवर लीव यू. आई नो पीपल विल लीव यू, इवन आवर पेरेंट्स एट सर्टेन एज दे विल लीव दिस वर्ल्ड, राइट? दैट्स हाउ अल्लाह मेड दिस वर्ल्ड. किसी को आते हैं कोई, आई मीन इफ समवन कम्स इन दिस वर्ल्ड, समवन विल लीव्स द वर्ल्ड. दैट्स हाउ लाइफ गोज ऑन. That's how Allah made the nature, the everything. So even when the whole world walked away, Allah was with me, and I believe in this. At this certain age, I started believing this. पहले मुझे समझ में नहीं आता था ये कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रियलिटी है जो कि आपको अपने दिल पे वैसे एनग्रेव्ड करना चाहिए. आई यूज्ड टू से स्टैम्प कर लो इस बात को अपने दिल पे, अपने दिमाग पे, अपने माइंड में ये बात को वैसे स्टोर कर दो. अल्लाह विल नेवर लीव्स यू. सारी दुनिया छोड़कर चले जाएगी, सारे लोग छोड़कर चले जाएंगे, हमारे पेरेंट्स हमको छोड़ के चले जाएंगे, हमारे शौहर हमको छोड़ के चले जाएंगे, शायद हमारी बीवियां हमको छोड़ के चले जाएंगी, हमारे खुद के बच्चे हमको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने कभी हमको छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे. ये बात अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत बार दोहराई है, बहुत बार रिपीट हो चुकी है ये बात काफ़ी ज़्यादा. देयर आर सो मैनी हदीस इन बुक्स जो यही बात को बार बार रिपीट करती है. इवन आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू से दिस, अल्लाह विल नेवर लीव्स अस अलोन. एंड व्हेन माय हार्ट वाज हैवी, व्हेन माय आईज कुड नॉट स्पीक, आई मीन व्हेन माय टंग कुड नॉट स्पीक, व्हेन माय आईज कुड नॉट क्राई, ही वाज द ओनली वन हु लिसन.
every dua I made, even the ones I whispered, Allah heard, you know, and that gave me hope. You see, the moment you realize Allah never leaves you, that's when you become unshakable, unstoppable. So ये बात को समझने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया. आई होप, मुझे ऐसा लगता है ये बात कुछ लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग बहुत टाइम के बाद समझते हैं. कुछ ये बात अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है कि अल्लाह ने आपको ये बात समझाने की कोशिश की तो वो अभी तुरंत. मैं आई डोंट नो हाउ कुड आई एक्सप्लेन. देयर वॉज वन नाइट इन माई पास्ट मंथ्स लाइक व्हेन आई वॉज सो लॉस्ट. ऐसे भी बहुत दिन आए हैं इन पिछले महीनों में जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था एक दिन के आज का ये दिन ख़त्म नहीं होगा, मतलब आज का ये टाइम ख़त्म नहीं होगा और शायद टुडे इज़ माई लास्ट डे. आई फील सो लॉस्ट. और मैंने अतराफ अपने अराउंड में कुछ भी देखना बंद कर दिया था, वैसे एकदम लॉस्ट रहना. लेकिन सडनली अ वीडियो अपीयर्ड ऑन माई यूट्यूब व्हाइल आई वाज स्क्रॉलिंग. I remember it was Mufti Meng's video on depression or something like that. If I remember, I will mention it in the description box, the video link, if I find it. Otherwise I will definitely find and post it on my Instagram page. You can follow me there too. So वो वीडियो देखने के बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह तो हमारे साथ हमेशा से ही है. हमारे पैदा होने से लेके आज तक अल्लाह हमारे साथ है. और वो वीडियो ख़त्म होने के बाद आई रिमेंबर आई टुक जा नमाज एंड आई प्रे 2 रकात नमाज एंड देन आई बर्स्ट आउट इन टीयर्स ऑन दैट जा नमाज. और फिर तुरंत मुझे उसी टाइम पे होप मिल गई. धीरे धीरे ग्रेजुअली आई स्टार्टेड बिकमिंग हु आई एम टुडे. एंड या सो द फिफ्थ लेसन इज कामनेस कम्स फ्रॉम सरेंडर. कितने ऐसे लोग हैं जो हम whenever we used to stress, डिप्रेस हो जाते हैं हम कभी कभी, एंशियस फील करते हैं, तो तब जब भी हम ये बात किसी से शेयर करते हैं, एवरीवन यूज्ड टू से अस स्टे काम, बी काम, डोंट बी सो स्ट्रेस. इतनी जल्दी फैसला मत करो, एकदम काम हो जाओ. पर किसी भी लोगों ने हमको ये नहीं बता के दिया है कि काम कैसे होना है ना. सभी बोलेंगे स्टे काम, लेकिन नो वन हैज़ शोन अस हाउ टू स्टे काम. आई मीन द सिचुएशन इज सो वर्स्ट दैट अवर माइंड एंड हार्ट कुड नॉट गिव अस द परमिशन टू स्टे काम इन दो सिचुएशन. ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है लाइफ में. सो वन थिंग आई वुड से, हाउ टू काम योर माइंड, हाउ टू काम योर हार्ट and how to stop the overthinking. We all chase peace. We think we will find it when life is perfect, or when people who used to love us should stay with us, तभी जाके पीस आएगा. हम ऐसा ही सोचते हैं ना, पीपल जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम मोहब्बत करते हैं, वो हमारे साथ है तभी पीस है. ऐसा सोच के हम सोचते हैं कि पीस तभी आएगा लाइफ में जब ये लोग हमारे साथ रहेंगे. बट आई फाउंड कामनेस. ऐसा मैं भी सोचती थी, लेकिन मुझे कामनेस कैसे मिली? व्हेन आई स्टॉप फाइटिंग विद अल्लाह's प्लान. व्हेन आई सेड या अल्लाह, वट एवर यू विल give me is better for me, and whatever you have taken from me, it was bad for me, and indeed you took bad and you are going to give me the good. I accepted this fact, this statement. उसके बाद खुद ही मेरे माइंड को कामनेस मिल चुकी है. ऐसा नहीं बोलूँगी मैं आई एम सो काम, अभी मेरा लाइफ में बिल्कुल अच्छा चल रहा है, मैं एकदम मेंटली एकदम स्टेबल हो चुकी हूँ, मतलब मैं इतनी ज़्यादा अभी पूरा ब्लूम हो गई हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी भी कुछ भी स्ट्रेस नहीं होता है. लाइफ में कुछ भी हो जाओ मुझे एक रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई यूज़ टू बिकम स्ट्रेस दीज डेज एज वेल, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड इट्स ह्यूमन टेंडेंसी टू बीइंग अनकाम और थोड़ा सा स्ट्रेस होना, ये सब ह्यूमन टेंडेंसी है. लेकिन मेरे माइंड को पता चल चुका है, अभी मेरे दिल को ये बात पता चल चुकी है कि जैसे ही हम ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि अल्लाह ने चीज़ ली है तो अल्लाह ही हमको उससे बेहतर देंगे, ये बात मैंने सोच ली. और तभी भी जब भी whenever I used to feel stress, whenever I feel lost, I start reminding myself, Allah has taken this, Allah will give us the best. Indeed, Allah is the best provider. The sixth lesson is independence is not just financial. ऐसे कितने लोग हैं जो
whenever a woman, you know, is lost, whenever a woman is in stress, is in anxiety, most of the people used to remind her that be independent financially. Even most of my family members used to say this to me. So one thing I want to say, इंडिपेंडेंस सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होने को ही नहीं बोलेंगे. इंडिपेंडेंस हैज़ मैनी मीनिंग्स और उसके बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमको अप्लाई करना चाहिए, जो हमको समझना चाहिए, जिसको हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ पे. तो मैं ये बताऊंगी कि इंडिपेंडेंस इज़ नॉट ओनली जस्ट फाइनेंशियल. बीइंग इंडिपेंडेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग डिसीजन विद विजडम, नॉट fear. It's about standing tall even if you are alone. It's about not letting toxic people control your emotion. Once I learned to set boundaries, once I learned to say no when needed and prioritize my well-being, that's when I become truly independent. सिर्फ आप, आई नो मोस्ट ऑफ वुमेन दीज डेज दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, लेकिन वो कहीं ना कहीं वैलिडेशन के चक्कर में, कहीं ना कहीं लोगों के अप्रूवल में और अपने लव्ड वंस के अप्रूवल में लॉस्ट है. फाइनेंशियली तो वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इमोशनली वो एक प्रिजन में रह रही है और उसकी प्रिजन की उन लोगों ने खुद ही अपने आप को लॉक किया है. इमेजिन करो आपने एक प्रिजन बनाया और उसमें आप खुद ही चले गए और उसके डोर को आपने खुद ही बंद किया, उसके डोर पे आपने लॉक भी लगा दिया और उसकी की लेके जाके आपने उस दूसरे इंसान के पास फेंक दिया जो कभी भी उसकी को लेके आपको ओपन नहीं करेंगे, मतलब लॉक को ओपन नहीं करेंगे, कभी भी आपको उसमें से बाहर नहीं निकालेंगे. उनको वो की नज़र भी नहीं आएगी, उनको प्रिजन भी नज़र नहीं आएगा, और अगर उनको प्रिजन नज़र भी आ गया तो वो खुश है कि आप उसके अंदर हैं. वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप उस प्रिजन से बाहर आओ, उनके साथ रहो और उनके साथ खेलो, मतलब उनके साथ लाइफ को फुली इंजॉय करो. वो कभी भी नहीं चाहेंगे. ऐसे इंसान को अगर आपने अपनी की दे दी और आप चिल्ला रहे हैं कि मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मुझे ये की उठाओ और मुझे अनलॉक करो, वो कभी भी नहीं करेंगे. और ऐसी कई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमेन को मैं देख चुकी हूँ. आई हैव ऑलरेडी सॉ सो मेनी कि इवन आई वॉज वन ऑफ देम, आई वुड से. मैं खुद उन्हीं वुमेन में से एक थी, लेकिन मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो प्रिजन है, ये जो जेल है, ये जो हेल है जो मैंने क्रिएट किया है अपने तरफ, इसको मुझे अभी तोड़ना पड़ेगा. तो मैंने चाबी का इंतज़ार नहीं किया. आई डिडंट वेट फॉर अदर्स टू गेट द की, टू ओपन माई लॉक, टू मेक मी आउट फ्रॉम दैट प्रिजन. मैंने ये सब नहीं किया. मैंने जितनी भी रिसोर्स अपने पास थी उसको यूज़ करके कहीं से भी जगह बना के उससे बाहर आ गई. तो आपको समझना पड़ेगा कि अपने आपको इमोशनली किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट एंड इट्स अ वेरी 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 बिग थिंग व्हेन इट कम्स टू यू नो इमोशनली इंडिपेंडेंट होना. ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से. तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बन सकती है. आई रीड सो मेनी बुक्स हाउ टू बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट. आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक एज वेल इन फ्यूचर इंशाल्लाह. So the sixth lesson I learned is independence is not just financially, but it's also, you know, setting boundaries and saying no whenever it needed. ऐसी कितनी जगह है जहाँ पे हम नो नहीं बोलते. जैसे सपोज़ करो हमने किसी को एक फ़ोटो बताया अपने फ़ोन में और इंसान ने एक फ़ोटो देख के वापस नहीं किया, बल्कि गैलरी से दूसरी फ़ोटोज़ देखना शुरू कर दी. तो हम वैसे चुप हो जाते हैं, मतलब हमारे दिल में नहीं होता कि वो हमारी गैलरी के दूसरे फ़ोटोज़ को रीच करे, लेकिन हम नो नहीं बोल पाते. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप नो बोल के उधर से एक बाउंड्री सेट करेंगे तो तब आपको, ये बहुत छोटी चीज़ का एग्जाम्पल दिया है मैंने, ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें भी है. आप खुद ही गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सो दैट्स द सिक्स्थ लेसन. नाउ द सेवेंथ लेसन, ये मेरा फेवरेट है. आई मीन ये करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा करेज चाहिए था, वो मुझे मिला भी है. इसके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, आप बोल सकते हो. यू नो आई टुक सो मेनी थेरेपी सेशंस और इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, मतलब मैं कैसे हो गई ऐसी कॉन्फिडेंट और मैंने कैसे अपने आप को इमोशनली आज़ाद किया है ख़यालात से. तो वो उसके लिए आई वुड मेड अ सेपरेट वीडियो. बट यू नो दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ माई फेवरेट एंड दिस इज़ द फाइनल लेसन. और ये फर्स्ट होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको लास्ट रखा है बिकॉज इट्स माई फेवरेट पार्ट. सो इट्स लव योर सेल्फ द वे अल्लाह मेड यू.
For years, I compared myself to others. I used to compare every little thing which I have. Why am I not like her? Why my life is different from others? Why do I have what they have? I mean, why I don't have what they have? But today I understand that Allah created me exactly as He wanted. My heart softened towards myself. I learned to love my life. I learned to love my journey. I learned to love my struggles, my face, my body, my soul. And that love gives me a natural glow and strength that no heartbreak could take away. आपको ये स्टेटमेंट जो है वो सभी लोग आपको दे देंगे. मतलब वेन एवर वी से भाई मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो सभी ने आके आपको बोलना है कि ठीक है, यू स्टार्टेड लविंग योर सेल्फ, जल्दी से खुद से प्यार करो. किसी ने आपको ये नहीं बता के देंगे कि हाउ टू लव योर सेल्फ, हाउ टू रिस्पेक्ट योर ओन वैल्यूज़. आई मीन हाउ टू रियलाइज दैट यू हैव सो मेनी qualities inside you. Yes, this thing no one is going to teach you. You have to understand by your own self. Allah made you beautiful. Everyone is beautiful because Allah cannot, as I said, as I mentioned in the starting of the video, Allah cannot make things imperfect because Allah is the perfect creator. Allah is the only God who is real. So वो कैसे imperfect चीज़ों को बना सकते हैं? आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी. आपको समझना होगा कि you are the beautiful in your own way. Then only you will start loving yourself. How to love yourself, I would make another video on this. How I started loving myself, ये भी मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूँगी. So these were my 7 lessons which I learned in all my 9 months. My real story, my raw truth, from being a less confident teenager to becoming a woman who I am today. The woman I am, like the woman I am right now, is calm, glowing and independent, not only financially but emotionally and physically. It was not easy journey for me, but every tear, every heartbreak, every lonely night was worth it. कुछ ना कुछ तो सिखा के गया है मुझे हर आंसू. And if you are listening to me right now, I want you to know you are not weak, you are not forgotten, you are not unloved, or you are loved by Allah. If you ever feel you are unloved by people, then start remembering yourself that you are loved by Allah and you can love yourself too. Thank you for being with me today. If you like the video, please like it, and if my story touch your heart, don't forget to like, share and subscribe, because maybe this message can help someone else who is struggling silently.